Hello students, now what is redemption of debenture? Debentures are the liabilities of the company and the repayment of debenture is called redemption of debenture. तो जब हम debentures की payment करते हैं that is called redemption of debenture. The repayment of debenture is made by the company in accordance with the terms of the issue. For redemption, what general entries to be passed? Debenture account debit to debenture holder because आपका liability जो वो reduce होने जा रहा है तो debenture to debenture holder and we are going to pay the amount to the debenture holder. So the second entry is to be done debenture holder account debit to bank. So these two entries are to be passed for the redemption of debenture. Now we have accounting for the issue of debenture considering the terms and conditions of the redemption. तो इश्यू ऑफ डिबेंचर पे आपने क्या एंट्री करनी है ये ध्यान रखते हुए कि रिडम्पशन के टाइम पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. सो व्हाट जनरल एंट्रीज टू बी पास्ड. डिबेंचर आपका मालूम है कि दैट कैन बी रिडीम्ड एट पार और एट द प्रीमियम जो भी आपका इशू की टर्म्स में मेंशन होगा. सो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास इशू की, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और दो पॉसिबिलिटीज़ हैं रिडम्पशन की, पार और रहता प्रीमियम. सो देयर आर द टोटल 6 केसेज आर देयर in which the accounting for these are to be done. So the first one is when the debentures are issued at par. Suppose आपका 100 rupees का debentures है and it is going to be redeemed on 100 rupees only. So what general entry is to be passed at the time of issue? Bank account debit to debenture application and allotment for 100 and debenture application allotment to debenture 100. These two entries are for the issue of the debentures. And for the redemption we have the debenture to debenture holder and debenture holder to bank again of 100 rupees. Now when debentures are issued at discount for 95 rupees का debenture हमने discount पे issue किया and redemption जो है वो 100 rupees की है. So bank account debit to debenture application and allotment 95 rupees received, 5 rupees for the discount. So debenture application allotment account debit 95, discount on issue of debenture 5 and to debenture account 100. और रिडम्पशन के टाइम पे सेम एंट्री होगा डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक. नाउ व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर 100 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़. सो द रिडम्पशन एंट्री सेम डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक. नाउ द नेक्स्ट केस in which issued at par and redemption at the premium. Sometimes debentures are issued with the specific condition that the company will pay the premium at the time of redemption. Although such premium will be paid at the time of actual redemption, but as it is known loss, so the company records such loss at the time of issue of debenture by debiting an account called loss on issue of डिबेंचर्स. क्लियर कि डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए गए थे पार पे लेकिन रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे. एज कंपनी इज ऑलरेडी नो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर दैट कंपनी इज गोइंग टू redeem the debentures at premium. So there is an account that is to be debiting the loss on issue of debenture account. For example, debentures issue हुए 100 रुपीज़ में और रिडम्पशन है उसकी 105 में. तो जब हमारे पास डिबेंचर्स इशू किए गए तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपीज़. नाउ अब आपकी जो जनरल एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 100, ये तो आपको ऑलरेडी पता था. अब आपको प्रीमियम जो है रिडम्पशन के टाइम पे पे करना है तो ये फर्म की लायबिलिटी है. सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज़ एंड इट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी. सो जब भी आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे देन देयर इज़ एन अकाउंट दैट इज़ टू बी ओपन बाय डेबिटिंग द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ऑल्सो. This is for the redemption premium or redemption of debenture account. So at the time of redemption of the debenture we are going to the reverse of this entry debenture account debit premium or redemption of debenture account debit because आपको debenture आपका liability reduce हो रहा है. प्रीमियम जो आप redemption के टाइम पे पे कर रहे हैं that is loss to the firm to the debenture holder 105 एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक आपके पास आ गया 105 रुपीज़. और ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपके पास है ये कैपिटल लॉस है एंड दैट इज़ टू बी कवर्ड विद द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज इफ देयर दैन जनरल रिजर्व और दैट मे बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट व्हेन द इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट द प्रीमियम. अब अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98 रुपीज़ का. ठीक है. और यू नो कि बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
₹2 फॉर द डिस्काउंट एंड ₹100 का आपका डिवेंचर हो गया. बट अगेन आपका डिवेंचर जो था वो प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा, तो वी हैव ओपन एन अकाउंट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड दिस इज द कैपिटल लॉस. Already we know that loss is there, so we have to open a loss on issue डिवेंचर अकाउंट with ₹5. तो ₹2 तो आपका इशू का लॉस था और ₹5 आपका रिडम्पशन का जो है वो लॉस है. सो टोटल लॉस इज ₹7 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर. सो जब रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर and debenture holder to bank ₹105. Now the last case when the issue of debentures at premium and redemption is also on the premium. तो जब डिबेंचर्स इशू किए वो आपने ₹6 प्रीमियम पे किए और रिडम्पशन जो है वो ₹10 प्रीमियम पे है. सो व्हाट एंट्री इज टू बी पास्ड? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. And again, if the debentures are going to be redeemed on the premium, then one more liability is to be created to premium on redemption of debenture ₹10, which is to be debited by the loss on issue of debenture is ₹10. And debentures account debit, premium redemption of debenture account debit to debenture holder and debenture holder to bank 110, which is going to be paid. So let us take an example for this, how the journal entries are to be passed for this. Suppose company is going to issue the debentures 2000 and 12% debentures issued at par and redemption at the par. Redemption भी par पे है और issued भी par पे है. तो what journal entry is to be passed for the issue of debenture? तो debenture issue जब कंपनी करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट for the application money received. आपके पास डिबेंचर्स है टोटल 2000 के डिबेंचर्स और ₹100 का ईच, तो अमाउंट आपके पास आ गया 2 लाख. और जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 2 lakh for transfer of application money to debenture account issued at par. ठीक है, तो ये आपकी इशू की एंट्री होगी. अब अगर आपने डिबेंचर्स 2000 के डिबेंचर्स थे, 12% डिबेंचर हैं, आपने इशू किया 2% डिस्काउंट पे और रिडम्पशन आपकी पार पे ही है. ठीक है, पार पे रिडम्पशन है. 2% मीन्स आपका जो डिबेंचर था वो ₹2 का, आपका ₹100 का, क्योंकि आपका एक डिबेंचर है. ₹2 डिस्काउंट पे, यानी कि आपने डिबेंचर्स इशू किया ₹98 में. नाउ व्हाट द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. और आपके डिबेंचर्स थे 2000, ₹98 का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, विच इज़ 1,96,000. सो देन 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट on issue of debenture account debit to 12% डिबेंचर अकाउंट. अब ये आपके पास आया 1,96,000, 4,000 का डिस्काउंट एंड टोटल डिबेंचर्स आर इशूड 2 लाख. ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी to debenture account issued at 2% discount. Clear? So now the third, you have given कि आपने डिबेंचर्स इशू किए 2000 के और जो इशू किया है वो 5% प्रीमियम पे किया है. ठीक है, 5% प्रीमियम, ₹10 का ₹100 का डिबेंचर था,
₹5 का प्रीमियम मीन्स आपने डिबेंचर्स इशू किया ₹105 का, तो व्हाट एंट्री इज टू बी पास्ड? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर application and allotment for the application money received on 2000 debentures at the rate of rupees 105 means 2,10,000. Now how to transfer the 12% debenture application and allotment account debit to 12% debenture account and to security premium reserve account. It is 2,10,000. टोटल डिबेंचर्स आपके पास थे 2000 के, ₹100 का एक डिबेंचर था, तो दिस इज़ 2 लाख और 2000 डिबेंचर्स ₹5 आपका प्रीमियम था, सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ गया आपका 10,000. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट केस वी हैव when debentures issued 2000, 100 each at par and redemption जो थी वो आपकी प्रीमियम पे थी, तो what entries to be passed? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 2000 डिबेंचर और ₹100 का ईच था, मीन्स 2 लाख की एप्लीकेशन मनी जो है वो आपको रिसीव होगी. अब नाउ आपको पता है कि जो रिडम्पशन है वो आपकी प्रीमियम पे है, तो वो हमने साथ में लेके चलना है. तो व्हाट एंट्रीज टू बी पास? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. ये तो आपको मालूम ही है कि ये हम एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की डिबेंचर अकाउंट के अंदर. अब बिकॉज प्रीमियम जो है वो रिडम्पशन पे है, सो वी हैव टू क्रिएट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. एक लायबिलिटी आपका क्रिएट हो जाएगा 10,000 का, एंड बिकॉज दिस इज द लॉस ऑफ द कंपनी, सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज टू बी डेबिटेड बाय 10,000. ये आपने कब करना है? लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज आपको पता है कि रिडम्पशन के टाइम पे 10,000 का लॉस होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू पे द डिबेंचर ऑन द प्रीमियम. तो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, द 10,000 दैट आर गोइंग टू बी पेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. सेम अगर आपने डिबेंचर्स इशू किया डिस्काउंट पे 2% और रिडम्पशन जो हो रही है वो आपकी 5% प्रीमियम पे हो रही है, देन व्हाट एंट्रीज टू बी पास्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. अब जो आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 2000 डिबेंचर्स के ऊपर ₹98 के अमाउंट रिसीव हुआ, मीन्स 1,96,000. ठीक है, जब आप इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वी राइट डाउन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. तो ये आपके पास हो गया 1,96,000, 4,000 का लॉस, और ये आपके पास हो गया 2 लाख. नाउ आपको पता है कि जो कंपनी रिडम्पशन कर रही है वो भी प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रही है, तो जो आपने इशू किया था वो भी आपके पास 4,000 लॉस था, तो दिस इज द डेबिटेड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर टू डिबेंचर 2 लाख का. नाउ अब कंपनी ने क्योंकि प्रीमियम जो है रिडम्पशन पे प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे करनी है, सो इट इज़ अगेन टू ओपन एन अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. अब 5% प्रीमियम पे करना है, मीन्स 10,000 रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना है. सो द टोटल लॉस इज ऑफ ₹14,000, 4,000 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड 10,000 प्रीमियम. सो दिस इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. आपके पास टोटल हो जाएगा 14,000 का, 4,000 फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड 10,000 फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. सो दिस इज द वे, जब आपके पास रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट, बिकॉज लायबिलिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज and loss on issue of debentures is also to be debited. Now again the last case we have debentures issue किया प्रीमियम पे और redemption भी आपके पास है प्रीमियम पे, then what entry is to be passed? Again bank account debit to debenture application and allotment account
अब जब एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई 2000 का आपका शेयर जो डिबेंचर था और 5% प्रीमियम पे इशू रिसीव हुआ है. सो 105 रुपीज़ आपके पास रिसीव हुआ, दैट इज़ 2,10,000. एंड व्हेन दिस इज टू बी ट्रांसफर्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर and to security premium reserve is 2,10,000, 2,10,000. अब बिकॉज आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो वी आर गोइंग टू ओपन एन अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विच इज़ टू बी डेबिटेड बाय द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. दिस इज ऑफ 20,000. So this is the way how to do the accounting treatment of the issue of debenture when we know the redemption is at the par, at the premium. Then this is the way how to deal with the questions. Now the last case we have in the issue of debenture is the writing of the discount or loss on issue of debenture. अगर आपके पास फॉर्म में एज पर दी CBSE गाइडलाइंस जो भी डिस्काउंट और लॉस है इशू ऑफ डिबेंचर्स का, दैट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और फ्रॉम द जनरल रिजर्व और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो हाउ टू डील विद दिस. सपोज एक कंपनी ने इशू किया 20,000 का डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% एंड रिडीमेबल ऑफ 5%. और एप्लीकेशन के 50 रुपीज़ पर डिबेंचर है और बाकी एक अमाउंट जो था वो अलॉटमेंट के साथ था. कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 550,000 का, जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपीज़ का एंड प्रॉफिट उसके पास अवेलेबल है 75,000 का. सो हाउ द क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट. फर्स्ट जो जनरल एंट्री हम करेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अब आपके पास जो डिबेंचर्स इशू किए थे वो 20,000 के डिबेंचर्स थे और 50 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन के साथ है, तो दिस इज़ ऑफ 10 लाख. देन 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट. These 10 lakh is to be transferred to debenture account. Application money transferred to 6% debenture account. Then we have to do the allotment. So 6% debenture allotment account debit to 6% डिबेंचर अकाउंट. और क्योंकि प्रीमियम रिडम्पशन पे था सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड इट इज़ टू बी डेबिटेड बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. तो आपके जो डिबेंचर्स थे वो टोटल थे 20,000 के और आपकी अलॉटमेंट आई 46 रुपीज़ की, क्योंकि आपका टोटल डिबेंचर जो था वो था 100 रुपीज़ का और 100 रुपीज़ के डिबेंचर में 4 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट है, तो आपका डिबेंचर हो गया 96 का. 96 में से 50 रुपीज़ जो थे वो आपके हैं एप्लीकेशन के, तो 46 रुपीज़ हो गए आपके अलॉटमेंट के. तो टोटल जो आपके पास 50 रुपीज़ का है 10 लाख, जिसमें 20,000 मल्टीप्लाई 4 रुपीज़ लॉस है मीन्स 80,000. सो दिस इज़ 9,20,000. अब जो आपका प्रीमियम था वो भी रिडम्पशन पे था, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ऐड. और जो रिडम्पशन का प्रीमियम है वो आपके पास है 5%, तो 5% प्रीमियम आपके पास हो गया 1 लाख एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऐड इन द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. तो दिस इज़ 1,80,000 फॉर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जिसमें 80,000 आपका इशू पे जो था डिस्काउंट था और 1 लाख आपका प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम का. नाउ अलॉटमेंट इज गोइंग टू रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर
allotment account, it is 9,20,000 for allotment money received. Now at the end, because आपको loss on issue डिबेंचर जो था वो 1,80,000 का है, that is to be write off, and we have given in the question also the security premium reserve. So this is from write off from the security premium reserve. So what entry is to be passed? Security premium reserve account debit, which is given, we have 50,000. After that the general reserve is also there, so general reserve account debit, it is 1 lakh there, and we have the loss on issue of debenture is 1,80,000. So how much is from this statement of profit and loss? Because 75,000 का profit and loss में आपका amount given है, but we have to charge now only the 30,000 to write off the loss on issue of debenture. So this is loss on issue of debentures to be written off. तो जब भी आपके पास लॉस गिवन है तो दे आर टू बी राइट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आफ्टर दैट फ्रॉम द जनरल रिजर्व, एंड नथिंग इज मेंशन देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो आपको राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसी साल में जिस साल आपका लॉस जो है वो अक्कर होगा. देन दे आर टू बी राइट ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो दिस इज द वे हाउ टू writing of the discount or loss on issue of debenture, and how the accounting treatment are to be done in keeping in mind the redemption at the par, at the premium. So this is all about the issue of debentures.